کبھی کپڑے بدلتا ہے، کبھی لہجہ بدلتا ہے، مگر ان کوششوں سے کیا کہیں شجرہ بدلتا ہے؟ تمہارے بعد اب جس کا بھی جی چاہے مجھے رکھ لے، تمہارے بعد اب جس کا بھی جی چاہے مجھے رکھ لے، جنازہ اپنی مرضی سے کہاں کاندھا بدلتا ہے؟ واہ واہ کیا بات ہے. رومال لے لیا ہے کسی مہجبین سے، کب تک پسینہ پوچھتے ہم آستین سے؟ یہ آنسوؤں کے داغ ہیں، آنسو ہی دھوئیں گے، یہ داغ دھل نہ پائیں گے واشنگ مشین سے. ایک شعر ہے کہ حالانکہ اس کے پیچھے ایک بہت بڑا سفر ہے جو لوگ پورا کیریئر داؤ پہ لگاتے ہیں اور پھر ناکام ہو کے واپس لوٹتے ہیں. ایک شعر یہ ہے کہ ناکام ہو کے لوٹ رہے ہیں فلک سے ہم، ناکام ہو کے لوٹ رہے ہیں فلک سے ہم، کیسے نظر ملائیں گے جا کر زمین سے؟ یہ چاہتے تھے موت ہی ہم کو جدا کرے، افسوس اپنا ساتھ وہاں تک نہیں. ایسے کریئر یوتھ کے لیے اس کو چننا ٹھیک رہے گا؟ بالکل، یہ بڑا اچھا سوال ہے. میں یہ بالکل کہنا چاہوں گا ان تمام نوجوانوں سے کہ سب سے پہلے تو وہ اپنی زندگی کی اہمیت کو سمجھیں کہ زندگی ہے کیا، زندگی دوبارہ نہیں ملے گی. آپ ایک بار چاہیں، ایک شعر ہے نشور واحدی کا کہ کوئی یہ بتا دے مجھ کو یہ شباب ہے تو کیا ہے، کوئی یہ بتا دے مجھ کو یہ شباب ہے تو کیا ہے، یہی عمر جاننے کی، یہی نیند کا سفر. آج ہم ککرالے میں آئے ہوئے ہیں اور یہاں ایک مشہور شاعر جو ریختہ میں بھی کئی بار جا چکے ہیں، وسیم نادر صاحب سے ملاقات کرنے کے لیے آئے ہوئے ہیں. اور آج آپ کو وسیم نادر صاحب کے بارے میں کچھ ایسی باتیں بتاتے ہیں تو شاید آپ نے اس سے پہلے کبھی جانی نہیں ہوں گی. تو السلام علیکم. میں شکریہ ادا کرتا ہوں جنت ایکسپریس کا کہ انہوں نے بڑا قیمتی وقت نکالا اور وہ یہاں تشریف لائے اور یہ سلسلہ شروع ہوا. جی وسیم صاحب، آپ کو دیکھا جائے تو ہر ورگ کا انسان، چاہے وہ یوتھ ہو چاہے وہ بزرگ ہو، ہر طرح کا انسان آپ کو سننا چاہتا ہے. تو ایسی کیا چیز ہے آپ کی شاعری میں جو لوگوں کو اتنا قریب لے آتی ہے آپ کے؟ دراصل شاعری میری ہو یا کسی اور شاعر کی، چیزیں وہی ہیں، جذبے وہی ہیں جو انسانی جذبے ہمیشہ سے رہے ہیں اور ہمیشہ رہیں گے. چیزیں فیشن کے طور پر تو کچھ چیزیں بدلتی رہتی ہیں، لفظیات بھی بدلتی ہے. ایک اچھا شاعر کو یہ بھی کہا جاتا ہے کہ وہ سماج کا اور معاشرے کا نباز ہوتا ہے، کیونکہ وہ حالات پر بڑی باریک نظر رکھتا ہے، گہری نظر رکھتا ہے. تو اس وقت کس چیز کی ضرورت محسوس ہو رہی ہے معاشرے کو، یہ نوجوان نسل ہے یا سنجیدہ مزاج کے لوگ ہیں یا عمر دراز لوگ ہیں، وہ کن سب چیزوں سے محظوظ ہو سکتے ہیں یا کن سب چیزوں کو پسند کر سکتے ہیں شاعری کے اعتبار سے. یہ سب چیزیں جس کے ذہن میں موجود رہتی ہیں جس شاعر کے، تو وہ تقریباً ایک ایسا راستہ اپنے لیے طے کر لیتا ہے کہ وہ تینوں طبقوں کے قریب چلا جاتا ہے، اس میں چاہے عمر دراز لوگ ہوں یا جو ہمارے بالکل ٹین ایجرس ہوں. اچھا، ایک چیز اور بھی ہے، ایک نفسیات ہے انسانی اور وہ نفسیات ہے محبت. عمر کا کوئی بھی پڑاؤ ہو لیکن محبت کی ضرورت ہر دور میں رہتی ہے، ہر عمر میں رہتی ہے. تو شاعر تو ایک بہت بڑا حصہ اپنا ویسے بھی اپنی شاعری کا محبت کے نام کرتا ہے. اب دراصل محبت کیا چیز ہے، یہ تھوڑا سا ایک طویل موضوع ہو سکتا ہے، ایک لمبی بات ہو سکتی ہے، کیونکہ محبت کوئی ایک شخص سے بھی ہو سکتی ہے. دو حصوں میں بانٹا گیا ہے ویسے عموماً محبت کو. ایک مجازی عشق ہوتا ہے، ایک حقیقی عشق ہوتا ہے. حقیقی عشق میں پوری کائنات ہے کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات شامل ہوتی ہے. مجازی عشق ہمارے یہ رشتے ہیں. تو محبت بہت بنیادی چیز ہے. جب محبت پہ شاعری ہوگی اور بہت کچھ یہ فن جن لوگوں کو آ جاتا ہے کہ وہ اپنی بات سلیقے سے کہہ سکیں، تو وہ ہر طبقہ انہیں پسند کرنے لگتا ہے، وہ مشہور ہونے لگتا ہے. حالانکہ بہت ابتدائی عمر میں تقریباً 10-12 سال کی عمر سے مجھے یہ محسوس ہونے لگا تھا کہ کچھ چیزیں ہیں میرے اندر جو مجھے اکساتی ہیں کہ مجھے کچھ کہنا چاہیے، کچھ کرنا نہیں چاہیے بلکہ کچھ کہنا چاہیے. کتابیں پڑھنا، رسائل پڑھنا، شعر یاد ہو جانا، افسانے پڑھنا، وہ جو ایک فائن آرٹ کا جو علاقہ ہے پورا، اس سے مصوری سے بھی بڑا دلچسپی تھی، حالانکہ میں اس طرف نہیں جا سکا. تو یہ سب چیزیں تھیں. تو وہ کہیں نہ کہیں پھر آتے 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 96 کے آس پاس کچھ شاعری ہونے لگی تو مجھے لگا کہ میں شاعری کر سکتا ہوں. تو آپ
एक का नाम लेना तो खैर बड़ी नाइंसाफ़ी हो जाएगी भाई। पसंदीदा शायरों में तो जो हमारे क्लासिकल शोरा हैं, असातिज़ा हैं, मीर और गालिब, तो गालिब तो बहुत ज़्यादा ही पसंद है मुझे। अच्छा, इस अहद में अगर हम आकर बात करें, हालांकि एक बहुत बड़ी सफ़ है, बहुत शायर उस सफ़ में आ जाएंगे, जाहिर सी बात है, बड़ा काम करके लोग आए हैं, हम उनको पढ़ कर आए हैं, उनको सीख कर आए हैं। लेकिन इस दौर में आते आते अगर मैं 2-3 नाम लूँ तो उसमें सबसे पहला नाम इरफान सिद्दीकी का बदायूं से है। इस वक्त इरफान सिद्दीकी पर जितना काम हो रहा है पूरी दुनिया में, और इसलिए भी हमें खुशी और फ़ख्र हासिल होता है कि हमारा ताल्लुक़ भी बदायूं से है, इरफान साहब का भी ताल्लुक़ बदायूं से था। बशीर बद्र मेरे बहुत पसंदीदा शायर हैं, अहमद फराज, परवीन शाकिर, नासिर काज़मी, ये एक बड़ी सफ़ है जो मैं गिना सकता हूँ। अच्छा, आपके तो ऐसा महसूस नहीं होता, सिर्फ आपको शौक रहा होगा इस चीज़ का, उसमें इतनी गहराई होती है, तो वो चीज़ आपके अंदर कैसे पैदा हुई? वो सिर्फ शौक तो नहीं हो सकता ये। हाँ, ये बात बिल्कुल सही है। वैसे भी ये कहा जाता है कि किसी भी किरदार को अगर पूरी तरीके से निभाना है तो उस किरदार में उतर जाओ। जी। शायरी का ये है कि मैं आज भी जो शेर कहता हूँ, हालांकि वो शेर ही होता है, उसके पीछे कोई पस मंज़र नहीं होता उसका, क्योंकि जो आपका सवाल है वो कहीं ना कहीं किसी ख़ास मोहब्बत की तरफ इशारा करता है। जी। लेकिन चूँकि मोहब्बत इंसान से है, जी। लेकिन इतना ज़रूर है कि मैं जो शेर कहने की कोशिश करता हूँ या जितनी भी शायरी मैंने अब तक की है, उसमें मैं ये ज़रूर कोशिश करता हूँ कि ऐसा लगे कि वो मुझ पर गुज़र के आगे बढ़ा है, मैं उससे गुज़र रहा हूँ। वो जज्बे, वो दुख या वो खुशियाँ, वो मैंने महसूस की हैं। जी। मैं कोई अदाकारी नहीं करना चाहता उसमें, मुझे लगता है कि वो दुख मैंने महसूस किया है, चाहे वो किसी और का दुख हो। तो इसलिए शायद जो आपका सवाल है वो सही जवाब यही है कि मैं उससे गुज़रता हूँ, बाकायदा महसूस करता हूँ उसे। अच्छा, अक्सर ये देखा गया है कि कोई भी यूथ अगर वो शायरी स्टार्ट करता है और वो थोड़ी मोहब्बत उसमें ले आता है, तो लोग उसको गलत समझना स्टार्ट कर देते हैं कहीं ना कहीं। तो अगर आपने ये चीज़ स्टार्ट की होगी तो आपके साथ भी बहुत मुश्किलात आई होंगी कि आपकी फैमिली ने, किसी ने ऐसा बोला होगा भाई किस फील्ड में जा रहे हो, ये कैसी बातें कर रहे हो, तो कुछ इस तरह से प्रॉब्लम का सामना करना पड़ा अपना शायरी में आपको? घर से नहीं करना पड़ा बिल्कुल भी, अलबत्ता इतना ज़रूर हुआ कि जब शुरू में ही खबरें आई कि मैं शायरी करने लगा हूँ, तो बहनें थीं या बड़े भाई थे, वो मजाक बनाया करते थे, थोड़ा सा हंसी मजाक का। लेकिन मुझे घर की तरफ से कोई बाउंडेशन नहीं था, ना ये सवाल कभी आया कि आप क्यों शायरी कर रहे हो, कि इसके पीछे रीज़न क्या है, मकसद क्या है तुम्हारा। एक वही ख़ास किसी लड़की का इश्क, जी। जैसा कि शायरों के से अक्सर ही सवाल आपने किया नहीं, बहरहाल समझदारी का सबूत दिया आपने। नहीं तो अमूमन पहला सवाल यही होता है शायर से कि भाई आपने शायरी शुरू की है, आप किसी के इश्क में नाकाम होंगे। तो सही बात तो ये है कि शायर अगर इश्क में नाकाम होकर अगर लोग शायर बनते तो शायद मजनू और रांझा सबसे बड़े शायर होते, मीर और गालिब नहीं होते। वो एक सलाहियत होती है, अल्लाह जिसे दे देता है और वो उस तरफ चल पड़ता है। अब उसकी फिर इश्क का मामला ये है कि ये कायनात है जी। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की, सबसे पहले तो इंसान है उसमें, आप इंसानों से मोहब्बत कीजिए, आपको बहुत सारे दुख दर्द मिल ही जाएंगे बयान करने के लिए। तो ये एक हो गया कि किसी को कोई चोट लगी है, तो ये दोनों चीज़ों को अगर अलग हटा दिया जाए, तो जैसे बीटेक कर रहे हैं लोग आजकल या फिर कुछ अपना और एकेडमिक में जा रहे हैं, ऐसे करियर यूथ के लिए इसको चुनना ठीक रहेगा? अजमत पिछले 10-15 साल से जब से सोशल मीडिया का ज़माना ज़्यादा आया, तब से तो लोग बाकायदा इस फील्ड में फ्यूचर बनाने के लिए आने लगे और प्लान करके शायरी करने लगे। हालांकि शायरी प्लान से होती नहीं है, पहले तो ये होता था कि 10-5 साल बड़ी बेनियाजी के साथ लोग शायरी करते थे, फिर वो कहीं ना कहीं हल्के हल्के इत्तेफाकी तौर पर मशहूर होने लगते थे और फिर उनका एक कैरियर बन जाता था, उधर वो चले जाते थे। लेकिन आज हालांकि ये हो नहीं सकता कि कोई बहुत प्लान करके शायरी में आए, कितनी भी कोशिशें कर ले वो, तो वो शायर नहीं बन सकता। पहली बात तो ये है, तो वो फ्यूचर तो बहुत तय नहीं हो सकता, प्लान के साथ नहीं हो सकता। अच्छा, चित्र के लिए एक बहुत बड़ी बात है, तो वो सफ़र आपका कैसा रहा है? असल में वो सफ़र भी एक मतलब इत्तेफाकी दौर का था। हालांकि रेख्ता में 1-2 लोग पहले से, जैसे फ़रज साहब रहते हैं वहाँ, तो मैं जाहिर सी बात है पूरा एक पूरी दुनिया, आदमी दुनिया उनसे वाकिफ़ है, फ़रज साहब से बड़े शायर हैं इस दौर के। लेकिन मेरी वहाँ मुशायरे के तौर पर जो मेरी हाज़िरी वहाँ हुई वो सालिम सलीम साहब, तो उन्होंने कहीं मेरा एक शेर सुना था कि ये चाहते थे मौत ही हमको जुदा करे, अफसोस अपना साथ वहाँ तक नहीं हुआ। ये शेर उन्हें अच्छा लगा, उनसे थोड़ी सी बातें हुई, फिर उन्होंने अपने तौर पे समझा मुझे, फिर उन्होंने मुझे रेख्ता के मुशायरे में
मदऊ किया 2019 में, और उसके बाद वो सिलसिला आज भी कायम है सालिम भाई का। उन्होंने फिर रेख्ता फाउंडेशन से मेरी बुक भी रिलीज़ हुई रंगों की मनमानी, अभी जिसका विमोचन रस्म इजरा ककराला में भी हुआ। तो ये सालिम भाई का सीधा सीधा एक बहुत बड़ा रोल है उसमें, जो मैं रेख्ता तक पहुंचाया, मैं उससे वाबस्ता हूँ। सर रेख्ता के अलावा जो एक संदेश भी देती हैं और एक लोगों के दिल को छू जाती हैं, ख़ास तौर से युवाओं के, तो कुछ गज़लें आज हमारे आप चैनल को बताइए। उसमें कुछ शेर हैं जो मतलब, हालांकि वही है कि वो मकबूल हो गए। एक वो मतला है गज़ल का एक शेर के, रूमाल ले लिया है किसी महजबीन से, कब तक पसीना पोंछते हम आस्तीन से, ये आंसुओं के दाग हैं आंसू ही धोएंगे, ये दाग धुल ना पाएंगे वॉशिंग मशीन से। और शेर है कि हालांकि उसके पीछे एक बहुत बड़ा सफ़र है, जो लोग पूरा कैरियर दाव पे लगाते हैं और फिर नाकाम होकर वापस लौटते हैं। एक शेर ये है कि नाकाम होके लौट रहे हैं फलक से हम, नाकाम होके लौट रहे हैं फलक से हम, कैसे नज़र मिलाएंगे जाकर ज़मीन से। तो ये इब्तिदा के ज़मानों में जब ये शायरी वायरी हुई तो ये लोगों को पसंद आई और कुछ मेरे नाम से जानी भी गई। ये कहा है, कभी लहजा बदलता है, कभी कपड़े बदलता है, कभी लहजा बदलता है, मगर इन कोशिशों से क्या कहीं शजरा बदलता है। तुम्हारे बाद अब जिसका भी जी चाहे मुझे रख ले, तुम्हारे बाद अब जिसका भी जी चाहे मुझे रख ले, जनाजा अपनी मर्जी से कहाँ कांधा बदलता है। वाह वाह, क्या बात है। जनाजा अपनी मर्जी से कहाँ कांधा बदलता है। एक शेर और भी मेरा बहुत जो शुरुआती ज़मानों में मशहूर हुआ, वो ये था, उसका मतलब गज़ल का ये है कि हैरान मेहरबानों के रूमाल हो गए, हैरान मेहरबानों के रूमाल हो गए, आंसू कमाले ज़ब्त से जब लाल हो गए, ये देखना है किस घड़ी दफनाया जाऊंगा, ये देखना है किस घड़ी दफनाया जाऊंगा, मुझको मरे हुए तो कई साल हो गए, मुझको मरे हुए तो कई साल हो गए, और तुम सारी उम्र कैसे संभालोगे नफ़रतें, तुम सारी उम्र कैसे संभालोगे नफ़रतें, हम तो ज़रा सी देर में बेहाल हो गए। तो वसीम साहब, आप जो शायरी का आने वाला फ्यूचर है, इसको किस नज़र से देखते हैं? देखिए, अब से तकरीबन 20-25-30 साल पहले मुशायरों की ख़राब शायरी पर हमारे जो अदीब थे या एक जो बड़ा संजीदा तबका था, उसे ही लगने लगा था कि मुशायरे या शायरी का दौर बहुत अच्छा नहीं रहेगा आने वाले दिनों में। लेकिन इधर आने के बाद फौरी तौर पर 2-4-5 साल में जो इनकलाब आया है यूथ की तरफ से, जो नई नस्ल शायरी से मोहब्बत कर रही है और जिस दीवानगी के साथ उसने शायरी में दिलचस्पी लेना शुरू की है, उससे तो ये लगता है कि बहुत रोशन मुस्तकबिल है शायरी का, और शायरी को कोई नुकसान होने वाला नहीं है, ना उर्दू ज़ुबान को कोई नुकसान होने वाला है इस ताल्लुक़ से। क्योंकि इस वक्त आप किसी भी शहर में चले जाइए तो हमारा ताल्लुक़ रहता है लोगों से मुलाकात का, इस हद तक दीवाने हैं लोग शायरी के कि ये सोचा नहीं जा सकता था कि शायरी इस तरीके से भी हो सकती है। बहुत बहुत छोटी छोटी महफ़िलें मुनक़्क़िद हो रही हैं, बहुत अच्छे खूबसूरत मुशायरे हो रहे हैं, उन इलाक़ों में मुशायरे होने लगे हैं जहाँ उर्दू का रिवाज ही नहीं था, जहाँ आप कभी सोच भी नहीं सकते थे कि यार उर्दू के मुशायरे होंगे, लेकिन बहुत कामयाब तरीके से वहाँ मुशायरे होते हैं और बहुत अच्छे तरीके से लोग शायरी सुनते हैं। तो मैं जिस नज़र से देख रहा हूँ या मैं जितना समझता हूँ, शायरी का मुस्तक़बिल बहुत रोशन है, उर्दू शायरी का मुस्तक़बिल बहुत रोशन है। लोग हैं जिनको आपने शायरी सिखाई, आज वो इंटरनेशनल लेवल पर अपना अच्छा बेहतरीन प्रदर्शन कर रहे हैं, तो आपको कैसा महसूस होता है? नहीं, ज़ाहिर सी बात है, खुशी तो होनी है और होनी भी चाहिए। जो बच्चे हैं जो सीख रहे हैं, हालांकि मैं ज़्यादातर अपने शागिर्दों से दोस्ताना रवैया रखता हूँ ताकि हम एक हद तक बेतकल्लुफ़ हो जाएं, अपनी बात कर सकें, जो जो जायज़ होनी चाहिए। बहुत लड़के हैं, हालांकि तादाद ज़्यादा हो गई है, कई लड़कियां हैं बहुत अच्छा शेर कहती हैं, कुछ लोग अपनी शिनाख्त बहुत तेज़ी के साथ बना भी रहे हैं, बहुत अच्छा शेर कहते हैं। तो जब वो उनकी शायरी को पजीराई मिलती है, उनकी हौसला अफजाई होती है, उनका जिक्र होता है या कोई हमसे पूछता है तो बहुत ज़्यादा खुशी होती है। जैसे कि एक बाप को अपनी औलाद पर होनी चाहिए, तो वही रोल है, तो मुझे बहुत खुशी होती है और मैं पूरी ईमानदारी के साथ उन लोगों के साथ जितना भी कर सकता हूँ, मैं पूरी ईमानदारी के साथ अपना रोल अदा करता हूँ। उसमें जहाँ तक जितना इल्म मुझे है वो मैं कोशिश करता हूँ कि मैं उन लोगों तक पहुँचा सकूँ। बिल्कुल, ये बड़ा अच्छा सवाल है।
मैं ये बिल्कुल कहना चाहूँगा उन तमाम नौजवान से कि सबसे पहले तो वो अपनी ज़िंदगी की अहमियत को समझें कि ज़िंदगी है क्या। ज़िंदगी दोबारा नहीं मिलेगी। आप एक बार चाहें, एक शेर है नशूर वाहिदी का कि कोई ये बता दे मुझको ये शबाब है तो क्या है, कोई ये बता दे मुझको ये शबाब है तो क्या है, यही उम्र जागने की, यही नींद का ज़माना। तो ये जो उम्र है आपकी बहुत कीमती उम्र है। जिस उम्र में आप ख्वाब सजा रहे हैं अपनी कामयाबी के, अगर उस उम्र में आपने एक ऐसा बहुत मामूली सा ख्वाब सजा लिया कि किसी एक शख्स की ज़ात के लिए आपने अपनी ज़िंदगी कुर्बान कर दी, तो वो आपने सिर्फ अपनी ज़िंदगी कुर्बान नहीं की, अपने वालिदैन की तरफ देखी जिन्होंने कितने ख्वाब बुने होंगे तुम्हारी ज़ात से और कितनी कुर्बानियाँ हैं उनकी। तो मोहब्बत बड़ी बुनियादी चीज़ है, कोई बड़ी पिलानी के साथ नहीं होती। लेकिन पहले तो मोहब्बत की जज्बे की सदाकत को समझिए कि मोहब्बत है क्या। ये कहीं खुदकुशी कर लेने का नाम नहीं है, ये अपने आप को बर्बाद कर देने का नाम नहीं है, ये तुम्हारी ज़िंदगी संवारने का काम है। आप मोहब्बत कीजिए सबसे पहले अपने आप से। जब आप अपने आप से मोहब्बत करेंगे तो आपको दुनिया खूबसूरत नज़र आएगी। अगर आप खुद को ही बर्बाद कर लोगे तो फिर काहे की दुनिया है। तो मैं नौजवानों से यही कहूँगा कि वो संजीदा होकर इस मौजू पे सोचें। और ये वक्ती तौर की चीज़ है। ज़िंदगियाँ उन लोगों की भी गुजरी जिन्होंने शायद इश्क में नाकामी हासिल की है। जो दुनिया समझती है इश्क में नाकामी हो जाना, लेकिन वो बहुत कामयाब हैं आगे चलकर, उनकी फैमिलियाँ हैं। तो इस सच्चाई को समझिए। 3 घंटे की फिल्म को आप अपनी ज़िंदगी पर लागू मत कीजिए, और अगर करते भी हैं तो 15 मिनट के एंड को ज़रूर गौर से देखिए कि ये अंजाम होना है। आप अच्छी उम्र में जी रहे हैं, इस वक्त आपके इख्तियार में है, कल आपके इख्तियार में कुछ नहीं होगा। तो जब आपका इख्तियार है उस वक्त आप अपनी ज़िंदगी को खूबसूरत बनाइए, लोगों से मोहब्बत कीजिए, अपने आप को बर्बाद मत कीजिए, संभाल के रहिए। देखिए, जिस तरह से आप लोगों के लिए इतना बेहतरीन संदेश दिया है कि सबसे पहले आप खुद से मोहब्बत कीजिए, ठीक है, अपनी फैमिली से मोहब्बत कीजिए, ठीक है, अपने करियर से मोहब्बत कीजिए। अगर ये सारी चीज़ें आपके पास हैं तो आपने जिससे मोहब्बत की है वो ऑटोमेटिकली आपके पास आ जाएगा। अगर नहीं भी आएगा तो आपके पास इतनी सारी चीज़ें मौजूद हैं। ठीक है, तो कैसा लगा हमारा इंटरव्यू, देखिए इसको।